सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਬੁਕਲੇਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो पहला क्वेश्चन आ गया जी अपने कोले, 2HGS plus XO2 YHGO 2SO2 in the above reaction X and Y are। प्रतिक्रिया ਵਿੱਚ X ਅਤੇ Y ਕੀ ਹੈ, X और Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ H ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ Y2 ਆਏਗਾ। ਸੋ Y ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Y2 ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Y2 ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, अगर आप इतने 2 लगा दें फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हैगी है वो है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर आप ये वैल्यूज पुट कर दें इतने इक्वेशन तो अपना आंसर जो अपनी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट डीकंपोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड द गैस लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन इज। ਜਦੋਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ SO2 ਔਰ SO3 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ both 1 and 2। both 1 and 2 इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है अपने को, 1 and 2 इज द राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो जी अगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं आप। थर्ड वाल मूव कर देने आप। When zinc metal is treated with H2SO4 the gas evolved is। ਜਦੋਂ जिंक धात H2SO4 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ जिंक जो है एक मेटल है और मेटल H2SO4 है ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ H2। H2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आएगा जी H2। So this is your question number 3rd। Let us move on to the fourth question। fourth question वाले चलते हैं आप जी। Litmus solution is extracted from dash plant belonging to the division Thallophyta। So ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਘੋਲ ਡੈਸ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਮਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਟਮਸ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਾਈਕਨ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੋਵਰਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ 1 ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਲਾਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ एक्सट्रैक्ट ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे जी, वेरी गुड। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे ने जी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। पंजवां क्वेश्चन आ गया जी अपने को। देयर आर सम सबस्टांसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, व्हाट आर दे कॉल्ड। कुछ वस्तां ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
जो भी गंध वाला काम आ गया ना, गंध मतलब स्मैल वाला काम आ गया, ऑर्डर का मतलब स्मैल होता है जी। जो गंध वाली कोई चीज़ आ गई तो वो अपने ऑलफैक्टरी, ऑलफैक्टरी मतलब सूंघण ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो ਇੱਥੇ कोई कन्फर्म कोई ज़्यादा सोचने की लोड़ ही नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ आंसर क्या आएगा ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जी हैगी है वो राइट आंसर हैगी है, ऑलफैक्टरी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिता है। सो इत्थे आंसर क्या आएगा ऑलफैक्टरी। अगे चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी अपने को। विच प्रोडक्ट इज फॉर्मड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मैटल। ये आप पीछे कर चुके हैं जी कि जदों तेजाब अते धात की प्रतिक्रिया होंदी है तो किहड़े उत्पाद पैदा होंदे हैं। देखो पिछे क्वेश्चन आप किया सी कि जदों भी धात नूं आपां एसिड नाल रिएक्ट करांगे हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। सो इत्थे तुसीं वेख सकते हो कि हाइड्रोजन दो ही ऑप्शन च पई है, पहले और दूजे दे विच। सो बाकी दो ऑप्शन तो खत्म हो गए ना अपनी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकते जी। सो याद रखो जो भी एसिड के नाल कोई मैटल रिएक्ट करेगी तो गैस अते सॉल्ट बनेगा जी। फर्स्ट इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है जी, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, दिस इज द राइट आंसर। चलो जी बढ़ते हैं आप अपने 7th क्वेश्चन दे वल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटल। इन्हां विचों धात केड़ी है। ऑप्शंस देख लेने आप किहड़े ऑप्शंस ने अपने को। कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है और ऑक्सीजन है। देखो क्लीयर है इत्थे सोडियम जो है वही धात हैगी इन्हां विचों, कार्बन धात नहीं हैगी, कार्बन अधात होंदी है, नाइट्रोजन भी अधात होंदी है, ऑक्सीजन भी अधात होंदी है। सो सोडियम इज द राइट आंसर। सोडियम जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है अपना। सोडियम एक धात है, वो तो मैं दस दवा, सोडियम एक अजिही धात है जिसनों अगर तुसीं पानी विच पाओगे तो उसनों अग लग जाएगी, है ना। इंटरस्टिंग। सोडियम नूं इसलिए इसनों कदे भी हवा दे विच नहीं रखिया जाता क्योंकि हवा दे विच नमी हुंदी है, पानी हुंदा है और ये अग फकड़ सकती है, इसलिए इसनों हमेशा कैरोसिन ऑयल दे विच पा के रखा जाता है, तेल दे विच पा के रखा जाता है ताकि इसनों अग ना लगे। चलो जी आप क्वेश्चन नंबर 8 वाल चल पैने हुण। नेम द प्रोडक्ट फॉर्मड व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो तुसीं पहलां तां थल्ले पिक्चर देखो जी, शायद तुसीं सल्फर की पिक्चर कदे वेखी नहीं होनी। ये सल्फर है जी, थल्ले थल्ले तुसीं देख सकते हो सल्फर है जी। सल्फर येलो कलर का होंदा है और सल्फर दे विच बहुत तेज गंध होंदी है। तुसीं कदे सीवर दे कोल लंघोगे जो स्मैल जी आती ना, सल्फर की स्मैल होंदी है, गंदी स्मैल होंदी है सल्फर की। बट सल्फर इज वेरी गुड फॉर द स्किन, स्किन वास्ते बहुत अच्छा होंदा है। इसलिए जिन्होंने फोड़े फुंसियां होंदियां ने या जिन्होंने स्किन डिजीज होंदी है उन्होंने आम तौर पर डॉक्टर सल्फर देंदे ने या वो वाली दवाई देंदे ने जिस विच सल्फर होवे। हुण क्वेश्चन पढ़ लिया आप। क्वेश्चन की है जो सल्फर ऑक्सीजन नाल प्रतिक्रिया करता है तो की बनता है, की उत्पाद बनता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड का बनेगा ही बनेगा ना, तो आंसर आएगा अपने को सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। जो चौथा है वो राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8th। चलो जी अगे बढ़ जाने आप अगले क्वेश्चन के वाल। बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं जी। मैं एक दूसरे नाम ले देना जी। कंचन, मोनिका, यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो जी। होर भी बच्चे है, शेर बहादुर, गुरमुख सिंह। अगला क्वेश्चन उन्होंने पहले ही जवाब दिता मेरे क्वेश्चन पढ़ने तो पहले ही। कहते हैं कि विच नॉन मैटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। वो किहड़ी धात है जो हवा के संपर्क आउंदे ही अग फड़ लेंदी है। देखो सिर्फ मैटल्स नहीं, नॉन मैटल्स कुछ अधातां भी ऐजियां होंदियां ने जो अग फड़ लेंदी है हवा के संपर्क में आते ही। सो सोडियम का धात है जी, कैल्शियम भी धात है। यूरेनियम बारे आपको जानकारी नहीं, यूरेनियम तो बहुत ही एक रेयर सबसटांस होंदा है जी। और इत्थे फिर की बचता है अपने को, इत्थे अपने को फास्फोरस ही बचता है जी। तो फास्फोरस जिहड़ा है वो जिहड़ा है अग फड़ लैंदा है हवा दे विच। सो जिहड़े पटाके होंदे ने, जो दिवाली आने वाली है, उस दिवाली के जो पटाके चलते हैं वो पटाकियां दे विच आम तौर पर फास्फोरस पाई होंदी है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। हेठ लिखो जो किहड़ा N2 अणु की बर्तन को दर्शाता है। इत्थे बच्चों ध्यान दो, जिहड़ा पहला इहदे तुसीं देखोगे फर्स्ट और सैकेंड ऑप्शन तुहानूं सेम लग रही है।
एक्चुअली पहले ਦੇ ट्रिपल बॉन्ड है जी, ਇਹਨੂੰ ट्रिपल बॉन्ड मान लो। पहले ਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੇ n ਵਿਚਕਾਰ ट्रिपल बॉन्ड है, फिर n ਤੇ n ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डबल बॉन्ड है, फिर n ਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल बॉन्ड है, या ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ n ਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल बॉन्ड ਆਏਗਾ, 3 बॉन्ड ਆਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਧੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 10th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगले क्वेश्चन वाल बच जाने हैं जी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन डबल कोवलेंट बॉन्ड? दोहरे सहसंयोजी बंधन विच कितने इलेक्ट्रॉनां दी सांझ हुंदी है? सहसंयोजी बंधन का मतलब हुंदा है ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन शेयर होण आपस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਡਬਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ शेयर होंगे ने। सो 4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जी। संदीप प्रजापति ने बिल्कुल सही जवाब दिता है, आकाशदीप ने दिता है जी, गुड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन? केटायन उदों बनता है जदों एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय एन एटम। तो केटायन का मतलब तुम याद रखो, केटायन जो इलैक्ट्रॉन लूज होणगे जाणगे तो उदों की बनेगा? केटायन बनेगा। जो इलैक्ट्रॉन गेन होणगे, जो कोई इलैक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो की बनेगा? एनायन बनेगा। जो इलैक्ट्रॉन लूज करेगा तो की बनेगा? केटायन बनेगा। सो इत्थे उसने क्वेश्चन केटायन पूछा है, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी एटम लूजेज इलैक्ट्रॉन। अगे चलते हैं जी आप। Let us move on to the next question, question number 13. कहता है M is an element with atomic number 20. What is the valency of element M? तत्व M ਦੀ परमाणु संख्या 20 है ਅਤੇ तत्व M ਦੀ संयोजकता कितनी होएगी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ याद रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शायद पिछली क्लास समझाया सी कि 20 इलेक्ट्रॉन ने ਇਹ ਸ਼ੈਲ बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ 8 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ 8 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सो आप लगा के देखिए, पहले 2 आ गए, दूजे 8 आ गए, तीजे 8 आ गए, 18 बन गए। तो लास्ट में कितने बचे? 2। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो इसकी वैलेंसी 2 आएगी, क्योंकि लास्ट में 2 बचता पे है। सो द ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज सॉरी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे कोले बैलेंस बचणगे अपने कोले, तो 2 आएगा आंसर हमदे कोले। 13th क्वेश्चन द आंसर इज 2। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. The properties of eka aluminium predicted by Mendeleev are the same as the properties of which element? देखो मेंडलीव ने ना एक बड़ा तगड़ा काम किया सी। उन्हें की तगड़ा काम किया सी, उन्हें ना जो टेबल बनाया तो उन्हें पहले दसता भी एक अजिहे एलीमेंट आएंगे, उन्होंने खोज होएगी, इस तरह उन्हें गुण मिलते होंगे। सो eka aluminium के जिहड़े गुण ने वो मिलते हैं किहदे नाल? अपने गैलियम नाल मिलते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन आप पहुंच गए जी। 15th क्वेश्चन के उत्ते क्वेश्चन रीड करो जी। रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
सोडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦੇਖੋ सोडियम मैटल है एल्यूमीनियम मैटल है ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 6 ਜਾਂ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲੋਇਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਧਾਤੂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ 'ਚ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ 'ਚ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ which part of the human body is responsible for the exchange of gases ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਐਲੀਓਵਲਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿੰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਲੀਓਵਲਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ 16ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਐਲੀਓਵਲਾਈ let us move on to the next question number 17 mode of excretion in plants are ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ by dead leaves through transpiration by cellular vacuoles ਜਾਂ all of the above ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਲੀਵਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ all is the right answer all option ਜੋ all ਹੈ ਉਹ that is the right answer all of the above तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आएगा जी all of the above in which direction 18वां क्वेश्चन आ गया जी in which direction electric impulse travel in neuron ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਐਕਸਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲਸ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्वेश्चन नंबर अपना आ गया जी 19th क्वेश्चन आ गया मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश देखो पौधे जो उगते ने ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਲਵੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ऋणात्मक ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਅਨੁਵਰਤਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ a few persons at the age of 24 to 25 remains dwarf it happens due to which of the following reasons ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਬੋਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ
ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ 20ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ 21st ਕੁਐਸਚਨ। Which among the following is the function of testis at puberty? किशोर अवस्था विच हेठ लिखियां विचों पतालू दा की कार्य है? उन्हें एक शब्द बोलता जी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था दे मतलब हले मैच्योर नहीं होया बच्चा। किशोर अवस्था कित्थों होंदी है? 13 तो लैके 18-19 साल की उम्र हैगी है। सो जनन सैलां दा निर्माण, टेस्टोस्टेरोन दा रिसा, प्लेसेंटा दा विकास या एस्ट्रोजन दा रिसा। देखो तुसीं इस क्वेश्चन नूं तो समझ लो कि टेस्टिस की गल कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन ही बनेगा अपने को ना। सो टेस्टिस जो है एक ग्रंथि हैगी है और एक ग्लैंड है, और टेस्टोस्टेरोन की है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। सो इत्थे आंसर आऊगा अपने को सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सेकंड इज द राइट आंसर। अगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22 वाल बात करनी है जी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मोड ऑफ reproduction is not an example of vegetative propagation? इन्हां विचों किस दी प्रजनन विधि कायिक प्रजनन दी उदाहरण नहीं है? Out of the following which mode of reproduction is not an example of vegetative propagation? देखो vegetative propagation का मतलब है जिमें आप जिमें पत्तियां तो पौधे पैदा हो जाने या है ना। सो इन्हां विचों जिहड़ा शुगर केन गन्ना है उनकी अख होंगी है, रोज, मैंगो, बनाना। सो इसका आंसर आएगा जी मैंगो। मैंगो जो है मैंगो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जी है वो एक एग्जाम्पल नहीं है, कायिक प्रजनन की एग्जाम्पल नहीं है। सो मैंगो इज द राइट आंसर। लो जी एक क्वेश्चन आ गया छिपकली वाला जी। छिपकलियां तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता होएगा है ना। The lizard's tail develops again a few days after it is cut off. What is the method of reproduction called? छिपकली दी पूंछ कट्टे जान तो कुछ दिन बाद दोबारा विकसित हो जाती है। ये प्रजनन की केड़ी विधि है? तुसीं वेख्या होना अगर तुसीं छिपकली दी पूंछ कट दोगे तो उन्होंने कोई असर नहीं पेगा, थोड़े दिनों बाद फिर उग जाती है दोबारा तो रीजनरेट, मतलब मैं वर्ड ही बोलता रीजनरेट कर जाती है, रीजनरेशन हो जाती है उसकी। सो इत्थे ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रीजनरेशन। रीजनरेशन जी है दोबारा तो जो है वो पैदा हो जाएगा अपने को। सो ऐसा आंसर आएगा रीजनरेशन। छिपकली तुम छिपकली डराओगे ज़्यादा, कोई मारने की कोशिश करोगे तो पूछ छड्ड भी देगी, आपकी कट्टी जाती है पूछ उसकी, लेकिन जड़ा है उसमें कोई नुकसान नहीं होता। वो जी पूछ है वो दोबारा तो जी है वो विकसित हो जाती है, इसमें असं रीजनरेशन बोलते हैं जी। चलो जी आप फिजिक्स के क्वेश्चन वाले पास आ जाने। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जी फिजिक्स। An object is placed at a distance of 10 meter in front of a convex mirror. What will be the position of the image formed? कहता है कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी ते उत्तल दर्पण के सामने पई हुई है, बने प्रतिबिंब की स्थिति की होएगी? देखो कन्वैक्स मिरर है, कन्वैक्स मिरर उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हम जिथे मर्जी रख लो तुसी, हमेशा ही ऑब्जेक्ट कितने बनेगा अपना बिटवीन पी एंड एफ। पी ते एफ के विचकार ही बनेगी, हमें जिथे मर्जी रख लो। सो इसका जो आंसर आएगा द आंसर विल बी पी एंड एफ इज द करेक्ट आंसर। पी एंड एफ जो है सही बिल्कुल आंसर आएगा जी अपने को। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। चलो जी अगे बढ़ते हैं आप 25वें क्वेश्चन वाल बढ़ जाने आप हौली हौली करके आप एंड वाल जा रहे हैं जी। अ स्टूडेंट इज यूजिंग अ स्लैब filled with water and student B using the slab made from the chrome glass for finding refractive index. What will be the relation between refractive index calculated by the student A and B? विद्यार्थी A पानी नाल भरे स्लैब की वरतों कर रहा है तो विद्यार्थी भी क्रोम ग्लास तो बने स्लैब की वरतों करके अपवर्तन अंक पता कर रहे हैं। देखो आपको देखना पड़ेगा कि हुण अपवर्तन अंक पता कर रहे हैं। एक बार उन्हें पानी लिया, एक बार उसने ग्लास लिया है।
पानी का अपवर्तन अंक 1.33 होंदा है, ग्लास का अपवर्तन अंक जिहड़ा होंदा है वो ज़्यादा होंदा है, 1.5 होंदा है। सो नैचुरली ग्लास का जिहड़ा हैगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा। सो इत्थे साफ आपां नूं ऑप्शन दिखाई दे रही है, सैकेंड ऑप्शन जिहड़ी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जिहड़ा बी यानी कि बी जिहड़ा स्टूडेंट है उसने जो अपवर्तन अंक पता किया है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टूडेंट दे। सो सैकेंड इज द राइट ऑप्शन, सैकेंड जिहड़ा है बिल्कुल सही ऑप्शन आएगी। चलो जी अगे बढ़ जाने आप। सिलेक्ट द क्वेश्चन मार्क पार्ट ऑप्शन बनाई। हेठा दिते विकल्पां विचों मनुखी अख दे प्रश्न चिन्ह नूं अंकित हिस्सा चुनो। मैं क्वेश्चन मार्क लाया है, ये किहड़ा हिस्सा है? अख दे बहुत सारे पार्ट होंदे ने, जिथे क्वेश्चन मार्क लग्या वो किहड़ा पार्ट है? वो पार्ट है जी रेटिना। तुसीं इत्थे याद रखो जिहड़ी इमेज है, जिहड़ा प्रतिबिंब है वो हमेशा कित्थे बनता है? प्रतिबिंब हमेशा रेटिना दे बनता है। सो जिथे क्वेश्चन मार्क लाया है वो रेटिना है अपने को बेसिकली। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज रेटिना। प्यूपिल, आइरिस, वाल्व तो कोई चीज़ नहीं होती जी, वाल्व तो हार्ट का होंदा है। प्यूपिल और आइरिस अगे होंदे ने, रेटिना पिछे होंदा है। तो नैचुरली द आंसर विल बी प्यूपिल, रेटिना इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, रेटिना। अगे चलते हैं जी, आप अगे बढ़ जाने हुण क्वेश्चन नंबर 27 ते बढ़ जाने आप। शब्द अनुकूलन समर्था अख ते लागू होंदी है, इसकी किहड़ी योग्यता नूं दर्शाउंदा है? द टर्म अकोमोडेशन इज अप्लाइड टू आई रेफर टू इट्स एबिलिटी टू। देखो आप कहने पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक ना कहावत हैगी भी अख जिहा कैमरा ते लख च नहीं लभदा। अख जिहड़ा हुंदा है, अख बहुत जबरदस्त कैमरा बनाया, नैचुरल नेचर ने बनाया। तुहाडे मोबाइल के कैमरे दे विच और अख के कैमरे विच एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है कि अपनी अख ना दूर दी चीज़ों और नेड़े दी चीज़ों अपने आप फोकस कर लेती है, ईजिली फोकस कर लेती है। सो कौन करता? उसमें बोलिया पावर ऑफ अकोमोडेशन करता कौन है? जो मसल्स करते हैं उसमें। हुण इत्थे की है, लाइट की इंटेंसिटी नूं तां नहीं आप चेंज कर सकते, पहले ऑप्शन तो गलत है। इरैक्ट इमेज नूं सीधा ये ब्रेन बनाता है। वेरीज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये भी कोई नहीं होता। सो वेरी दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की जी फोकल लेंथ है ना उन्होंने चेंज कर देता है। इसमें से पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। आपको कहा जाता ना, डॉक्टर आपको कहते हैं भी हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाने लगे अपने मसल स्ट्रोंग रहने। मसल स्ट्रोंग रहने तो अपनी अखा मसल ने तो घट वध करनी है, टाइट करना है, ढीला करना है। सो अगर आप मसल सब्जियां खावे, हरी सब्जियां, तो मसल स्ट्रोंग रहने, अपनी अखा मजबूत रहने। अखा बुढ़ापे के की होंगे आम तौर पर चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि मसल्स ढीले पै जाते हैं, अखा जी मसल्स काम नहीं कर रहे, पावर ऑफ अकोमोडेशन घट जाती है, इसलिए अपना जोड़ा है अखा काम करना। सो अच्छे आंसर आएगा वेरी दी फोकल लेंथ। चलो जी अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 28 रह गया जी अपना। यस, Rajdeep got his eye corrected. The optician prescription for the spectacles reads left eye minus 3.50 diopter, right eye plus 3.50 diopter. The person is having a defect of vision called। कहना राजदीप ने अपनी अखा के डॉक्टर तो अपनी जांच करवाई, अखा ने डॉक्टर उसनों नज़र के चश्मे लिए ये लिखता है खब्बी अख माइनस 3.5 डायोप्टर, सज्जी अख प्लस 3.5 डायोप्टर। राजदीप को किहड़ा दृष्टि दोष है? हुण देखो एक तो माइनस पावर का लग रहा है, एक होंदा प्लस पावर का। इसका मतलब उसमें दोनों ही प्रॉब्लम है, उसमें दूर का भी दिखाई नहीं देता, उसमें नेड़े का भी दिखाई नहीं देता। सो इत्थे आंसर आऊगा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज द राइट आंसर। प्रेस बायोपिया आएगा आपके को 28 का आंसर है प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर अपने को आगे। During an experiment, a student forget to attach the instrument at position A and B. What should be the attached at position A and B so that Ohm's law can be verified? प्रयोग के दौरान एक विद्यार्थी स्थिति A ते B ते लगाए उपकरण भुल जाता है। स्थिति A ते B ते की जोड़िया जाना चाहिए जो ओम के नियम का तस्दीक हो जाए। तुसी YouTube मेरे चैनल के उत्ते तुसी वीडियो देख सकते हो। एमीटर को हमेशा सीरीज से लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल से लगाया जाता है। जिथे ए है वो सीरीज है उत्थे एमीटर आएगा और सी दे पैरेलल दे विच वोल्ट मीटर आएगा। सो इत्थे फर्स्ट ऑप्शन जिहड़ी है वो बिल्कुल सही हैगी है, वोल्ट मीटर एट ए, एमीटर एट ए एंड वोल्ट मीटर एट बी। दिस इज द
राइट आंसर। सो 29 का जो आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन चल देंगे आपको। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be ਇੱਕੋ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਲਕ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜੀਬੱਧ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ 1:4 नहीं आएगा, 4:1 आएगा जी इसका आंसर। क्योंकि देखो जो आप मान लो उदाहरण के तौर पर एक दी रजिस्टेंस मान लो 1 ओम है, मान लो उदाहरण के तौर पर, ठीक है जी। सो की बनेगा जी अपने को 1 + 1 सीरीज 2 बन गया, पैरेलल च बनूगा 1/2। जो रेशो कटूंगा तो 4:1 बन जाएगी अपने को। सीरीज में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी, पैरेलल दे विच घट हीट प्रोड्यूस होएगी। डेफिनेटली द आंसर विल बी 4:1। 4:1 इज द राइट आंसर। सो अगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 31 से चले जाने आप। टू गेट 2 ohm resistance using only 4 ohm resistance, the number of them required is 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm। अपन कितने चाहिए ने जी? अपन 2 ohm चाहिए, 2 ohm या कितने 4 ohm दियां 2 रेजिस्टेंसेस चाहिए ने अपना आंसर दो, क्योंकि 1/4 + 1/4 इज आंसर इज 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। 32 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। A positive charge is moving toward a person, the direction of magnetic field lines will be। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਐਂਟੀ clockwise। एंटी clockwise is the right answer। 33 a coil of insulated copper wire is connected to galvanometer forming a loop and a magnet। एक लूप बनाया जी, एक मैगनेट है। पहला आप मैगनेट ਨੂੰ बिल्कुल विराम अवस्था में रखते हैं, फिर दूर ले जाने, फिर नेड़े ले जाने। करंट किहड़ी सिचुएशन च आएगा? जो भी मैगनेट हिलेगा उदों करंट आएगा। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ B and C is the right answer। B and C is the right answer। आगे चलते हैं जी। Which of the following roles is played by herbivores in the food chain? भोजन लड़ी भी शाकाहारी द्वारा निम्नलिखित में केड़ी भूमिका निभाई जाती है? प्राइमरी कंज्यूमर है। आंसर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, बच्चों लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? ओजोन परत दे होने विच की अपने कोले ओजोन परत दे विच कौन रिस्पोंसिबल है जी? एयर कंडीशन। एयर कंडीशन इज द राइट आंसर। एयर कंडीशन। सो तुसी एक बार अपने अपने सारे बच्चे दसो कि स्कोर कितना कितना थोड़ा आया। So this is the test series, अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज थी जी। सो आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छा लग गया होगा जी। 33, 30, 35 वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। राकेश कुमार 35 out of 35 वेरी गुड। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। तो सारे ने क्लास एंजॉय की थी जी। सो मैं हुण क्लास आई थिंक खत्म करना समा आ गया जी। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा और जो अपनी PDF है उसमें भी मैं शेयर कर दिया। और हुण आपां अज है वीरवार, आपां संडे नूं फिर मिलांगे जी। नैक्सट थर्ड जी सीरीज हैगी है
थर्ड सीरीज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਦ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਟੇ ਸੇਫ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।